Welcome back to my new video. So today we are going to start a new chapter, which is chapter number 12, which is electrochemistry. The word electrochemistry means the word electro firstly means the word electro here means electricity. The word electro comes from electricity, and the chemistry, we know that chemistry means chemical reaction, and specifically redox reaction, which means reduction and uh, oxidation and reduction reaction are commonly called redox reaction. Specifically, we are studying here a redox reaction. Redox reaction. So if you write the definition of electrochemistry electrochemistry, so it is defined as a interchange of chemical and electrical energy. Electrical energy. Interchange means interconversion, or we can say yes, interconversion. Interconversion of chemical chemical energy into electrical energy. Electrical energy and vice versa. Okay, what did the statement mean? So the electrochemistry is a branch of chemistry, is the type of chemistry in which we study about the electricity, in which we compare the electricity with chemical reactions. So interchange of chemical and electrical energy means interchange of chemical energy and electrical energy, or electrical energy and chemical energy. We can say interconversion. Interconversion of chemical energy into electrical energy and vice versa means केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना. इन द thermochemistry we study about the interconversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy. वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इसी का उल्टा होना. जैसे केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल हो. So this means vice versa. So interconversion of chemical into electrical energy, or electrical energy into chemical energy, is called electrochemistry. And in this, I've also mentioned that in this specifically we read about the redox reaction. So if अभी देखते हैं, when electrical energy, see, when electrical E means electrical energy is converted into chemical energy. In chemical energy, this here electrolytic cell is used. Electrolytic electrolytic cell is used. And if we convert chemical energy, अगर हम chemical energy से convert करें electrical energy में, तो हम यहाँ पर electrochemical cell, or we can say uh, another name of this cell is uh, galvanic cell. Okay, galvanic cell. Okay, let me write the definition. Interconversion of electrical into chemical by electrolytic cell. And interconversion of chemical into
इलेक्ट्रिकल बाय गैल्वेनिक सेल, या इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं वोल्टेक सेल, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, सो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेट मी मेंशन हियर इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो अगर हम दिस पहले की बात करें तो वन पॉइंट, दिस इज द सिंगल फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट। वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमारे पास प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस, अगर हम प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस इन electrolytic cell take place called process in electrolytic cell called electrolysis। एंड अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, जैसे इसमें हो रहा है इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल एनर्जी में, तो हमारा प्रोसेस आ रहा है द प्रोसेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल टेक प्लेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वी प्रोवाइड एनर्जी। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, दिस इज अ कंटेनर, और इसमें दिस इज सपोज दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज अ नेगेटिव, and we have to uh, give electricity, means we have to convert electrical energy into chemical energy, electrical energy chemical energy। So in this process हम इनको, we will pass the electricity, through the solution, and in which the electricity provides sufficient energy, means in this process हम लिखा called electrolysis। and if you continue this definition, और हम इस definition को इधर लेके आए, तो process called electrolysis कहता है in which we pass electricity from the solution or the any electrolyte in which we pass electricity from solution or an electrolyte, and electricity is providing sufficient energy, or we can say providing energy to cause a redox reaction called non-spontaneous ओके। जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, इन विच क्या करते हैं हम प्रोसेस में, हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है टेक प्लेस, इन विच वी पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोल्यूशन। हमने अगर ये सोल्यूशन लिया है तो हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि कैथोड हो गया, एनोड हो गया, तो इनमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, और इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी तब इलेक्ट्रिसिटी में सपोज ये जिंक है और ये कॉपर है, अगर इसमें रिएक्शन हो रहा है तो हम इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, बाय विच electricity, when electricity pass, it provide a sufficient energy to cause a redox reaction। मीन्स एक रिएक्शन करवाने के लिए हम एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? नॉन स्पॉन्टेनियस। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी, जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, तो उसमें
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, क्योंकि वो खुद ब खुद नहीं होता. वी हैव टू गिव एनर्जी, वी हैव टू गिव एनर्जी, वी हैव टू यूज एनी सोर्स एज अ बैटरी. सपोज अगर हम ऐसे करें, फॉर एग्जांपल Na और वी हैव Cl. ओके, सो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहे हैं तो मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, या उसमें लिखे हम रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी में भी हमारे पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और रिडॉक्स रिएक्शन में भी हमारे पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. ओके, अगर हम इस रिएक्शन को सपोज करें Na प्लस इसमें क्लोरीन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ क्लोरीन से सोडियम में जा रहे हैं, ओके, क्लोरीन से सोडियम में जा रहे हैं, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज और ये हो गया रिडक्शन स्टेट हो गई. ओके, ये क्या हो गई, रिडक्शन स्टेट हो गई, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये पहले से ऑक्सीडाइज है. अब ये इलेक्ट्रॉन लेके ये रिड्यूस है. ओके, ये रिड्यूस है, ये ऑक्सीडाइज है. ओके, ये दोनों आइंस है, एक रिड्यूस हुआ हुआ है, एक ऑक्सीडाइज हुआ हुआ है. तो अगर जो रिड्यूस है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए थे, अब जब भी इलेक्ट्रॉन देगा इसको तो ये हो जाएगा रिड्यूस. ये गेन कर रहा है तो इसका पॉजिटिव साइन खत्म हो जाएगा. ओके, दैट इज़ वाई ये हम इसको कहते हैं कि ये रिड्यूस हो रहा है और ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये लॉस कर रहा है और ये गेन कर रहा है. अगर हम चार्जेस के हिसाब से देखें तो ये रिड्यूस हुआ हुआ है और ये ऑक्सीडाइज हुआ हुआ है. ओके, बट इस कंडीशन में ये इसको रिड्यूस कर रहा है बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और ये नेगेटिव से अगर जब रिड्यूस करेगा तो नेगेटिव से ये मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो देगा, लॉस करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज ले लेगा. तो जब भी ऐसा रिएक्शन होता है, जब भी हमें रिडॉक्स रिएक्शन करवाना है, क्लोरीन सब सोडियम है, तो हम इधर बैटरी यूज़ कर रहे हैं एज अ बैटरी विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी. बैटरी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, टू पास इलेक्ट्रिसिटी. हम बैटरी इसलिए यूज़ कर रहे हैं टू पास एन इलेक्ट्रिसिटी. हमने ऊपर लिखा है इन विच वी पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोल्यूशन. हम इलेक्ट्रिसिटी में, ये सोल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी में सपोज है ये कंटेनर है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए मैंने एक बैटरी यूज़ की है एज अ सोर्स. मैंने क्या यूज़ किया है, बैटरी यूज़ की है एज अ सोर्स. तो इन द रिजल्ट हमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोवाइड करती है बाय विच रिडॉक्स रिएक्शन होता है. एनर्जी प्रोवाइड करती है तब ही ये क्लोरीन के आइंस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोडियम इसको गेन करता है और रिडॉक्स रिएक्शन होता है. रिडॉक्स रिएक्शन वो इस रिएक्शन को कहते हैं जो एट द टाइम रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन हो, एट द सेम टाइम पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है, ये लॉस कर रहा है, ये गेन कर रहा है. तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद नहीं हुआ. ओके, खुद ब खुद का ना होना, खुद ब खुद ना होना. खुद ब खुद ना होना मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद ना हो, जिसको हम कोई एनर्जी, या हम इसको बोलते हैं, इसको हम कह सकते हैं इट इज़ एक्टिव प्रोसेस. हम एक्टिव प्रोसेस कह सकते हैं, एक्टिव प्रोसेस. हम एक्टिव प्रोसेस का नाम दे सकते हैं क्योंकि दिस रिक्वायर्स एनर्जी. हमें पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी. अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें, हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी पढ़ लिया हमने. अब हमारे पास जब केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो ये होती है बाय गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल. बाय गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल. इसमें क्या होता है, इन विच इलेक्ट्रिसिटी provides as a source. इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है एक रिएक्शन में, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इट मीन्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी in which we can say in which a source of which provide a source of electricity which provides a source of electricity
एंड दिस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दिस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन से, जो ये होगी by the source of by the source of electricity, redox reaction takes place, called spontaneous reaction. हम इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों नाम दे रहे हैं? बिकॉज जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जब भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तब बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पहले हमने क्या किया था? हमने पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हमने केमिकल कंपाउंड बनाया था। हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हमने केमिकल रिएक्शन करवाया था, और इसमें केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं बाय गैल्वेनिक सेल। ये प्रोसेस किस में होगा? गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल, जिसमें क्या होता है, इन विच इट प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ, जो प्रोवाइड करता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड होती है। जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है तो हमें एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, मतलब एक रिएक्शन की वजह से हमें एक सोर्स मिला जिसकी वजह से हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया, एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा जिसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि हमने इस पर कोई बैटरी नहीं लगाई, कोई हमने खुद से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, इसमें खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की वजह से रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है, तो इस वजह से हम इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। मतलब खुद ब खुद होना। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद होना, खुद ब खुद होना, ओके। इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर हम एक एग्जांपल लें तो हमारे पास एग्जांपल है, जैसे वीट रिंग प्लस, इसमें हमने कॉपर लगा दिया, आपने तो लगा दिया +2, तो और हमने यहाँ पर लगा दिया एक बल्ब, हमने यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, बाय विच सी, अब ये जो कंपाउंड है कॉपर हैव मोर अट्रैक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि ये मोर अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और इसकी साइज छोटी है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसने +2 है, मतलब इसने लूज किए हुए, ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, ऑक्सीडाइज जब होगा, जब एक एलिमेंट, जब एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, सपोज उसकी एक एटम है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेल है, मतलब एक में 6 और एक में 8, 2 है, तो अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, उसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो उसकी साइज पहले से छोटी हो जाएगी, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन भी कम कम हो गए। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम के पास पहले शेल में 2 होते हैं, उसके बाद 8 होते हैं, और उसके बाद होता है 1, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जब ये लूज करता है, तो हमारे पास उसकी साइज़ छोटी हो जाती है, उसका ये जो पार्ट होता है ये हमारे पास कट जाता है, तो ये छोटी साइज हो जाती है। तो जितनी छोटी साइज होगी उतना न्यूक्लियर पावर ज़्यादा होगा, तो जितनी न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी उतना मोर अट्रैक्शन करेंगे, तो ये इसके पास ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम जिंक टू कॉपर। हाँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ से। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, बल्ब जल रहा है। दिस रिएक्शन हम कहते हैं, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, क्योंकि बाय विच हमें इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स मिल रही है अंडर सम केमिकल रिएक्शन। ये एक रिएक्शन हो रहा है बाय इन गैल्वेनिक सेल, बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनिक सेल हम एक यूज़ करते हैं, जो रिडॉक्स रिएक्शन को होता है बाय द प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसकी वजह से रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो कि खुद ब खुद रिएक्शन हो। तो ये होता है स्पॉन्टेनियस
reaction and non-spontaneous reaction.